हेलो व्यूअर्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट उससे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी। रिगार्डिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी सम टर्म्स। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल। फर्स्ट, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। नॉर्मल रेडिएशन consists wavelength of different photons of different wavelengths having wave motion in all possible planes. But a monochromatic radiation has consists photons of equal wavelength, having wave motion in all possible planes. Is called monochromatic radiation. Again, radiation consisting photons of equal wavelength, but have wave motion in all possible planes. When a monochromatic radiation is passed through a Nicol prism, the wave motion of photons of equal wavelength get polarized or becomes in one plane. Now it is called plane polarized light. So plane polarized light can be defined as the light consists photons of equal wavelength having wave motion in a fixed plane. Now the substance which can rotate the plane of polarized light passing through its solution is called optically active substance. A substance rotating plane of polarized light in right side is called dextrorotatory or represented D or plus, and substance which rotates plane of polarized light in left side is called levorotatory, represented L or minus. The optical activity of a substance is measured by instrument known as polarimeter. The angle of rotation of plane polarized light, theta, is directly proportional to C into L, where C is concentration of the substance in solution as gram per ml. Concentration as gram per ml. And L is length of polarimeter tube consisting the solution in decimeter. Length of polarimeter tube consisting the solution as decimeter. Now, proportionality constant alpha is removed by alpha d, and theta is equal to alpha d into C into L. Well, alpha d is a constant which is known as a specific rotation of the substance. For definition of alpha d, L 1 densimeter and C is 1 gram per ml. Then theta becomes alpha d. In language, concentration 1 gram per ml and density 1 decimeter. This can be expressed as the specific rotation of a substance may be defined as rotation in degree caused by solution containing 1 gram per ml of the substance filled in a polarimeter tube of 1 decimeter length using plane polarized light सोडियम डी लाइट जिसका वेवलेंथ 5893 आंसर होता है। इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल मैं एक न्यूमेरिकल दे दे रहा हूं। ये 3 ग्राम sample of optically active compound dissolved in 5 ml alcohol and taken in a tube of 1 centimeter length. Observed rotation of B light is 2.22 degree. Calculate alpha D.
तो concentration in gram per ml, 3 gram in 5 ml, concentration gram per ml is 3 by 5. Length of colorimeter tube consisting solution 1 centimeter cube or 0.1 decimeter. Theta 2.2 degree. So alpha d theta by Cl, it is 37 degree. Now conditions for optical activity, very important. इस बेसिस पर आप जान करेंगे कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. A molecule having no symmetry, no center of symmetry and plane of symmetry is called dissymmetric molecule and it exhibits optical activity. Center of symmetry और plane of symmetry, इसको आप समझ सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के बॉडी में वो पॉइंट जिससे दोनों एंगल, दोनों साइड अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो at same distance you will get same things. जैसे ये सेंटर है, इस साइड एज लेंथ मिल रहा है, कॉर्नर मिल रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री. वो हाइपोथेटिकल प्लेन जो किसी ऑब्जेक्ट को थ्रू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर रहा है. अगर किसी मॉलिक्यूल में लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वो डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं हम, और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा. A molecule having no element of symmetry. बहुत ही तरह के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है. इट्स कॉल्ड एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और chiral molecule and exhibits optical activity. Organic molecule consisting a carbon atom. Organic molecule consisting a carbon atom attached to 4 different atoms or groups is called chiral carbonate. And such molecule is called chiral molecule. This carbon atom is attached to 4 different atoms and groups A, B, C and D. ये molecule optically active होगा. A molecule consisting 2 or more chiral carbon atoms and cannot be divided into 2 identical halves is always optically active. 2 chiral का center है और different है, HOH, CHO and this one group, HOH and CH2 and this one group. ये different chiral carbon atom है, such molecule always optically active होगा. A molecule containing 2 or more chiral carbon atom can be divided into identical halves. May or may not be optically active. अगर identical half बन रहा है with more than one chiral carbon atom, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी. जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2 chiral carbon atom है और ये सेम. अगर ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है, इस रूप में देख रहे हैं, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री. इसी मॉलिक्यूल का ये रूप है और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इसी रूप से बनता है, एक्लिप्स फॉर्म से. इसमें ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होगा. इसका दूसरा कॉन्फ़िगरेशन देखिए, या ये OH, HOH and COH, this center of symmetry और प्लेन ऑफ सिमेट्री. इस मॉलिक्यूल को 2 आइडेंटिकल हाफ में बांटा जा सकता है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल, ये 2 chiral carbon atom है 1 and 2. इस मॉलिक्यूल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, ऐसे यहां से लाइन ऐसे कट करें तो आइडेंटिकल हाफ बनेगा. ये प्लेन ऑफ सिमेट्री का ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन इसमें ये 2 chiral carbon atom है,
ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा. नाउ वी कम्स टू मेन टॉपिक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. द स्टीरियो आइसोमर having different effect on plane of polarized light passing through their solutions are called optical isomers, and this phenomenon is called optical isomerism. मैं कहना चाह रहा हूं ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट इफेक्ट ऑन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. डिफरेंट मीनिंग हो सकता है कि उसमें से वन डेक्स्ट्रो हो, दूसरा लेबोरेटरी हो. दूसरा मीनिंग हो सकता है कि एक ऑप्टिकली एक्टिव हो, दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो. तीसरा हो सकता है कि दोनों डेक्स्ट्रो हो या दोनों लेबो है, बट एंगल ऑफ रोटेशन डिफरेंट हो. तो ऐसा कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी है, उन्हें ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे. ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट एनसीओमर्स. The stereoisomers which are related as object and mirror image but not superimposable are called enantiomers. The enantio of related as object and mirror image and not superimposable. Enantiomers rotate plane of polarized light at the same angle but in opposite direction. Same angle but in opposite direction. So they are also called GL pair. इनमें से एक डेक्स्ट्रो होगा, दूसरा लेबो. लैक्टिक एसिड. ये दो मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है, मिरर इमेज है, बट नॉट सुपर इम्पॉसिबल. तो इनमें से एक डेक्स्ट्रो होगा, दूसरा लेबो होगा. डेफिनेटली ये कहना मुश्किल है कि डेक्स्ट्रो होगा, कौन लेबो होगा. तो इसको डीएल पेयर कहते हैं. द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ enantiomers, all physical properties except effect of plane polarized light, so they cannot be separated by a physical method. The substitution product of two enantiomers with optically inactive reagents are also enantiomers. This carboxyl group का स्तर बनाया गया है विथ इथाइल, ये भी enantiomers. But substitution product with optically active reagent are not related as object and mirror image and called as diastereomers. इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. A very important example, a mixture containing equal amount of two enantiomers is called racemic mixture and is optically inactive. Mixture containing equal amount called racemic mixture. Now, mixture containing two enantiomers, इनकी ऑप्टिकल प्यूरिटी और इनमें एक्सेस निकालने के लिए फॉर्मूला है आर ऑब्जर्व एक्चुअल रोटेशन बाय आर प्योर डेक्स्ट्रो और लेबो इनटू 100. डी रिप्रेजेंट फॉर डेक्स्ट्रो आइसोमर, एल रिप्रेजेंट फॉर लेबो आइसोमर. एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है अल्फा डी फॉर enantiomer, अल्फा डी फॉर कैलकुलेट अल्फा डी. An enantiomeric excess containing 6 gram of D isomer and 4 gram of L isomer. You can true one. प्योर फॉर्म में अल्फा डी है 13.5. ये फॉर्मूला यूज हो रहा है डी माइनस एल बाई डी प्लस एल इंटू 100. 6 माइनस 4 बाय 6 प्लस 4 इंटू 100. अगर एल ज्यादा होता तो एल माइनस डी हो जाता 20%. तो enantiomeric एक्सेस इनका हो गया आर मिक्सचर
by RPO. तो एनेंशियोमेरिक एक्सेस 20% है, यहां से लिया गया है, और प्योर का 13.5 है, तो आर मिक्सर का प्लस 2.7 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अल्फा डी मिक्सर कंटेनिंग डी एंड एल आइसोमर ऑफ अल्फा पायरिडिन 30.8 डिग्री, और प्योर 15.3 है। डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो फॉर्मूला से एनेंशियोमेरिक एक्सेस आर ऑब्जर्व बाय आर प्योर इंटू 160% आ रहा है। एनेंशियोमेरिक एक्सेस 60%, इट मीन्स, और प्लस में, it means D isomer is 60% more than L isomer. Hence, mixture contains 80% D and 20% L. Next example, a mixture containing 8 stereoisomers separated as 5 fractions in fractional distillation. The mixture एक आइसोमर का मिक्सचर है जो जो स्टीरियोआइसोमर 5 फ्रैक्शन में जा रहा है, मतलब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 5 हुआ, और एनी 3 फ्रैक्शन में जो टोटल 8 था, तो पेयर ऑफ आइसोमर्स गया, तो 3 पेयर्स में एनेंशियोमेरिक पेयर गया जिनका सभी फिगर प्रॉपर्टी सेम था। तो 5 फ्रैक्शन में 3 फ्रैक्शन में एनेंशियोमेरिक पेयर है और 2 में सिंगल सिंगल है। तो 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड 3 ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, जो एनेंशियोमेरिक पेयर फॉर्म कर रहा है। नाउ डायस्टीरियोमर्स, term आया था, the stereoisomer which are not related as object and mirror image are called diastereomers. 2 chiral carbon atom है, this one and this one, इनके एक बना और इसका ये एनेंशियोमेरिक पेयर, दूसरा जब वो सेम साइड में है, ये एनेंशियोमेरिक पेयर। तो 1 and 2 3 and 4 आर एनेंशियोमर्स हुआ, जबकि 1 and 3 are not the object in the mirror image. Similarly, 1 and 4, 2 and 3, and 2 and 4. These are called diastereomers. Diastereomers may or may not be optically active. A molecule can have more than one diastereomer. There's a 1 3V diastereomer and 1 4V diastereomers. Diastereomers have different physical and chemical properties. इसलिए एनेंशियोमर को डायस्टीरियोमर्स के रूप में कन्वर्ट करके सेपरेट किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट थिंग, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिस आर आल्सो कॉल्ड डायस्टीरियोमर। Geometrical isomers are also stereoisomers and not related as object and mirror image. Next, mesomer, optically inactive isomer containing 2 or more chiral carbon atom is called mesomer. Its optical inactivity is due to presence of plane of symmetry or center of symmetry. पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था वही। तो ये डीएल पेयर है और ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसे मेसोमर कहेंगे। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने के लिए n chiral carbon atom हो and cannot be divided into identical halves. The number of optically active isomers 2 to the power n एनेंशियोमेरिक पेयर, टोटल नंबर ऑप्टिकल आइसोमर्स का पेयर बनेगा, तो 2 to the power n minus 1। अब मेसोमर्स यहाँ 0 हो जाएगा। एक तो फॉर्मूला जो सेकेंड हम लोग डायस्टीरियोमर्स वाला में लिए थे, ये वाला 2 chiral carbon atom है, आइडेंटिकल हाफ नहीं बनता है, तो 2 to the power 2 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बना, अब कोई मेसोमर नहीं। दूसरा एग्जांपल यहां देखिए, एल्डोहेक्सोज 4 chiral carbon atom है, आइडेंटिकल हाफ नहीं बन रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स 16 हुआ, एनेंशियोमेरिक पेयर 4 minus 1 3 8 हुआ, मेसोमर 0 हुआ। If molecule contains even number of n chiral carbon atom and can be divided into identical halves, optically active isomer 2 to the power n minus 1 होंगे, अब मेसोमर 2 to the power n by 2 minus 1 होगा। 4 आइसोमर्स हैं
और आइडेंटिकल हाफ बना रहे हैं, आइडेंटिकल हाफ, सॉरी। COH दोनों साइड में COH कर दिया। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 2⁴ मतलब 8, मेसोमर्स 2 हो गया। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑड नंबर ऑफ n chiral carbon atom and can be divided into two identical halves. Then optically active to n-1 minus to n1/2 और मेसोमर 3 और आइडेंटिकल हाफ बन रहा है, दोनों सेम है। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर 2 हुआ और मेसोमर 2 हुआ। एक टर्म है स्यूडो कायरल कार्बन एटम, ध्यान दें इसी मॉलिक्यूल। इस कार्बन एटम की अगर हम बात करें, इसकी बात करें तो HOH और ये दोनों साइड में सेम ग्रुप जुड़ा है, इसको स्यूडो कायरल कार्बन एटम कहते हैं। इस फार्मूला में इसको हमने कायरल के रूप में कंसीडर किया है, बट इट इज नॉट ए प्योर कायरल कार्बन एटम। इसके बारे में जानिए। ये ग्रुप है, तो देखिए इस कार्बन एटम हुआ, ये ग्रुप और ये ग्रुप अगर इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, दोनों OH सेम साइड में है, ये OH सेम साइड में है, तो अब ये दोनों ग्रुप एकदम सेम हो गए। ये अभी कायरल नहीं है, इसलिए एक कायरल का कंडीशन हुआ, जबकि H और OH अब ये दोनों ग्रुप मिरर इमेज नहीं बना रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये कायरल है। CC bond with chiral carbon is also considered as chiral center for calculating number of optically active isomers. मतलब कायरल कार्बन एटम के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला डबल बॉन्ड, जिसे यहाँ देखिए इस डबल बॉन्ड के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, यहाँ कायरल कार्बन एटम। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 2:2:4 होगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ऐसे समझिए इसका दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुआ सी सेंटर्स और ईच का आइडेंटियोमेरिक पेयर। यहाँ ये डबल बॉन्ड और ये कायरल कार्बन एटम, अगेन 2:2:4 डबल बॉन्ड और कायरल कार्बन एटम, 2:2:4 हो गया। बट यहाँ आपको दो कायरल कार्बन एटम दिखा रहा हूं, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 2 ही है, बिकॉज ये इधर से इंटर ब्लॉक हो गया। तो यहाँ सिस ट्रांस कंडीशन जनरेट नहीं होगा, ऑलवेज एग्जिस्ट सिस जिसका आइडेंटियोमेरिक पेयर होगा। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स बताइए, यहाँ कितना कायरल सेंटर दिखा रहा है, 1 2 3 4 कायरल कार्बन एटम हुआ, ये डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक, ये टोटल 6। ऑप्टिकल आइसोमर मॉलिक्यूल विदाउट कायरल कार्बन एटम, एलिज। जब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड था तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन था, यहाँ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के कारण इवन नंबर रहेगा, तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा और टर्मिनल डिफरेंट होने पर यह ऑप्टिकल आइसोमेर शो करेगा। जैसे देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp और sp2 मिक्सिंग लेकिन इधर से px भी अलग हुआ था, sp2 में p by p के साथ py आएगा, p के साथ px आएगा। इस कार्बन का प्लेन xz प्लेन होगा, इस कार्बन का प्लेन yz प्लेन होगा। ये प्लेन में नहीं रहा, इसलिए इसमें ऑप्टिकल आइसोमेर शो करेगा। सिमिलरली जैसे स्पाइरो कंपाउंड में भी इवन नंबर रहेगा तो ये ऑप्टिकल आइसोमेर शो करेगा। साइक्लोअल्कीन एल्काइलिन है, ये देखिए यहाँ सिस ट्रांस नहीं हुआ था, लेकिन कायरल कार्बन एटम तो नहीं है, लेकिन देखिए ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये
प्लेन में ये पूरा पोर्शन है, आर एबव द प्लेन है और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। तो प्लेन में काटिएगा तो पीछे वाले प्लेन में हाइड्रोजन जगह इधर आ रहा है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट बाइफिनाइल कंपाउंड, जब तक ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तब तक वन ग्राउंड फ्री रोटेशन हो रहा है और दोनों वेरी प्लेन में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ दोनों ऑर्थो पर मल्टी ग्रुप आ गया तो स्टैटिक रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर नहीं रहेगा, इस रिंग के परपेंडिकुलर रिंग रहेगा। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर डिफरेंट हो जाए, जैसे NO2 और COH और NO2 रखें, तो न प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा न सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। एमीन इन्वर्जन, एमीन इन्वर्जन ये एमीन नाइट्रोजन से सी डिफरेंट ग्रुप है इनका। तो ये जैसे आप तेज हवा में छतरी उलट जाती है उसी तरह ये उलट जाता है। तो इस कारण से एक फॉर्म दूसरे फॉर्म का एनर्जी हो जाता है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। In case of a cyclic compound, they undergo rapid inversion of shape at room temperature. So exists a non-measurable mixture. लेकिन ये नाइट्रोजन एटम अगर रिंग में आ जाएगा तो इन्वर्जन नहीं होगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। वही सेंट्रल एटम फास्फोरस है तो बॉन्ड एंगल बहुत कम होगा। नाइट्रोजन के केस में बॉन्ड एंगल sp3 बॉन्ड एंगल क्लोज टू 109 डिग्री होता है, इसलिए इन्वर्जन हो जाता है। जबकि फॉस्फीन के डेरिवेटिव में यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, ये पी ऑर्बिटल से बनते हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास होता है, इसलिए यहाँ इन्वर्जन नहीं होगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकल आइसोमर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो configuration of optical isomers in carbohydrate chemistry is denoted as D and L. So first member of carbohydrate aldohexol is considered to be glyceraldehyde with one chiral carbon atom. If OH is right side, it is assigned to be D configuration and OH in left side assigned to L configuration. इसी बेसिस पर अब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया गया है। व्हेन लास्ट chiral carbon atom in carbohydrate molecule has configuration similar to D-glyceraldehyde, it is assigned to D configuration, and when it is similar to L-glyceraldehyde, it is assigned to L configuration. Now we discuss R and S configuration of optical isomers. Step 1. Step 1 में कोई priority, order of priority decide, order of priority of 4 atoms are attached to chiral carbon atom is decided as follow. इसको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी देखे थे। फर्स्ट है the group consisting atom of greater atomic number or atomic mass at first point of difference is higher priority. तो अगर सिंगल एटम है तो डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ मास नंबर के साथ प्रायोरिटी डिक्रीज करेगी। अगर फर्स्ट एटम सेम है तो प्रायोरिटी डिसाइडेड ऑन सेकंड एटम। Here second atom is 3 hydrogen atom. Here second atom 2 hydrogen and 1 carbon, 2 carbon and 1 hydrogen and all 3 carbon atom. OH and OCH3. First atom same oxygen है, second atom hydrogen, second atom carbon. NH2. All have first atom nitrogen, second atom 2 hydrogen, 1 hydrogen, 1 carbon, both carbon. If second atom is forming multiple bond, it is duplicated or triplicated.
CHO, second atom oxygen forming double bond. So for deciding priority, carbon atom is assumed to be attached with two oxygen atom. Second atom nitrogen forming triple bond. The carbon atom is assumed to be attached with three nitrogen atom. That means state 2. इस तरह आपने ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया. अब chiral, the molecule is visualized, keeping group or atom of lowest priority from away from observer. बैक में रखा जाएगा, मतलब जिसको आप डैश से डिनोट कर रहे हैं. एंड रिमेनिंग ग्रुप जो आपकी ऑब्जर्वर की तरफ फेसिंग है उसको विजुअलाइज किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी. If I travels in higher to lower clockwise, it is assigned to R configuration, and when they are in anti-clockwise direction, it is assigned to S configuration. Order of priority: OH, then COH, then CH3, then H. H is kept away from the viewer. Now OH, COH, CH3. Arrangement in anti-clockwise direction, so S configuration, OH, COH, CH3. Clockwise direction, R configuration. So two enantiomers, these two molecules are enantiomers, has opposite configuration. एक का S है, दूसरे का R है. Fisher projection formula में atom or group of least priority is kept as bottom, H. OH, COH, CH3 anti-clockwise, S. OH, COH, CH3 clockwise, R. अगर ये लिस्ट प्रायोरिटी वाला बॉटम में नहीं है तो उसको रियल करके बॉटम में लाना होगा. इसके दो वे हैं. चारों ग्रुप में से चार ग्रुप का दो पेयर बना लीजिए. जैसे COH, OH का पेयर बनाया, CH3 का पेयर बनाया, इंटरचेंज कीजिए पोजीशन. कैसे आ गया बॉटम पर? अब देखिए OH, COH, CH3 क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो R. और अगर दूसरे तरह से कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूल को आप ऐसे पकड़ेंगे और उसका तीनों को रोटेट करेंगे. जैसे COH को होल्ड करके रोटेट किया गया मॉलिक्यूल, ऐसे यहां आ गया, CH3 OH यहां आ गया, तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आया. फिर से OH, COH, CH3 क्लॉकवाइज है कॉन्फ़िगरेशन. थर्ड, अगर आपको रिंग में है तो रोटेशन में दिक्कत हो रही है तो सबसे आसान तरीका है वो इसको मैंने जो लिस्ट प्रायोरिटी वाला उसको अवे नहीं रखना है, अवे नहीं रख पा रहे हैं तो जैसे है वैसे देखिए. अगर वो अवे नहीं है तो क्लॉक वाइज के लिए R दीजिए और एंटी क्लॉक वाइज के लिए क्लॉक वाइज के लिए और एंटी क्लॉक वाइज के लिए R दीजिए. अगर आप लिस्ट प्रायोरिटी वाले को अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नहीं रख पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है. जैसे देखिएगा इस मॉलिक्यूल को दिखा रहा हूं, H क्या है, बॉटम में नहीं रख रहे हैं तो COH, OH, COH, CH3 मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज. H बॉटम पर नहीं है तो इसको आगे रख रहे हैं. यहां देखिए फर्स्ट कार्बन एटम को दिखा रहा हूं, ये वाला ऊपर वाला C, COH, COH, OH, H एंड पूरा CH, OH, COH. ये फर्स्ट कार्बन हुआ. अब बॉटम वाला देखिए CHOH, COH, H, OH एंड COH. ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बन रही है. OH का सबसे ज्यादा, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ. 1, 2, 3 दिख रहा है आपको. तो OH, COH, CH3 एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है और H बॉटम पर नहीं है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज में C2 को R दिया है. और C3 में OH, COH
ये ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, आर बॉटम पर नहीं है तो इसको भी आर दिया। और जस्ट इसका रिवर्स है, इसमें दोनों में एसएस होगा। और यहाँ आइए, वेज अगर लेफ्ट साइड में है तो आर देंगे, और वेज अगर दोनों ऊपर में वेज, ऊपर वेज राइट साइड में है तो आर, और नीचे का वेज राइट साइड में है तो एस। तो एक रिलेशन आ रहा है कि टू एनसीओमर्स, वन और टू एनसीओमर्स है, इनका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, आर आर एंड एस एस। और मेसोमर में दो हाफ, एक अपर हाफ का कॉन्फ़िगरेशन आर है और लोअर हाफ का कॉन्फ़िगरेशन मेसोमर, टू आइडेंटिकल हाफ हैज अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एंड डायथीलियोमर्स हैज डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स ऑल। अब हम लोग नेक्स्ट जीओसी शुरू करेंगे अगले टॉपिक के रूप में।